بڑے انتخابی دنگل سے پہلے مسلم لیگ نون فیصل آباد میں بڑا سیاسی پاور شو کرنے کے لیے پرعزم۔ سٹی قیادت نے ڈپٹی کمشنر آفس میں جلسہ کی اجازت کے لیے درخواست جمع کروا دی۔ عظیم الشان جلسے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ میاں ضیاء الرحمان کہتے ہیں مریم نواز جلسے میں شریک ہوں گی۔ مریم نواز جلسے میں شریک ہوں گی، بات کریں گے عبد الرحمان سے۔ جی عبد الرحمان بتائیے گا۔ تو بات کریں مسلم لیگ نون کے جلسے کے حوالے سے 2 فروری کو فیصل آباد میں بڑا جلسہ ہوگا، اور اس سلسلے میں یہاں پر مسلم لیگ نون کی جو سٹی قیادت ہے شیخ اعجاز احمد سٹی صدر، مسلم لیگ نون کے سٹی جنرل سیکرٹری میاں ضیاء الرحمان ابھی ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کر کے اس حوالے سے جو تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اس حوالے سے بریفنگ بھی دی جا رہی ہے، اور اپنے جو یہاں پر لیٹر جمع کروایا گیا اس کے حوالے سے بھی فالو اپ لیا گیا۔ تو کیا مزید اطلاعات ہیں یہ سب بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آلریڈی اپلیکیشن جو ہے اس کی وہ فائل کی ہوئی تھی، تو آج ہم اس کو انکوائر کرنے کے لیے آئے تھے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ تو ڈی سی صاحب نے بتایا کہ وہ ان پروسیس ہے، تو انشاءاللہ 1-2 دن میں جو ہے وہ اس کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا، تو پھر آپ کو بتا دیا جائے گا۔ شیخ صاحب مجھے جلسے کے حوالے سے بتائیے کہ کیا پلان ہے؟ دیکھیں جی، جلسہ تو آپ کو پتہ ہے کہ دھوبی گھاٹ ایک تاریخی میدان ہے، اور اس میدان کو ہم نے کافی دفعہ سر کیا ہے پہلے۔ اس مرتبہ انشاءاللہ قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اور قائد کی بیٹی جو جرت کی علامت ہے محترمہ مریم نواز، وہ دونوں تشریف لا رہے ہیں، اور یہ قریب آپ کو پتہ چل جائے گا یا مریم صاحب آئیں گی یا نواز شریف صاحب آئیں گے، کیونکہ تینوں لیڈر جو ہیں مین شہباز صاحب، مریم صاحبہ اور نواز صاحب الیکشن کیمپین میں ہیں، تو انشاءاللہ تعالی دونوں آئیں موسٹ ویلکم، یا ایک آئیں تب بھی موسٹ ویلکم۔ اور فیصل آباد جو ہے رحمان صاحب انشاءاللہ تعالی اپنے لیڈر کا اور اپنے قائد کی بیٹی کا منتظر ہے۔ جب فیصل آباد میں وہ تشریف لائیں گے تو فقید المثال استقبال ہوگا، اور مجھے امید ہے اللہ کے گھر سے کہ سابقہ جو تمام ریکارڈ ہیں ان کو توڑیں گے اس دفعہ۔ عبد الرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد کے حلقے پی پی اے 113 سے آزاد امیدوار مزمل سرور ڈوگر کی انتخابی مہم میں تیزی۔ ڈڈی والا، مدینہ ٹاؤن، منصور آباد اور دیگر علاقوں سے مختلف دھڑوں نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ ڈڈی والا، مدینہ ٹاؤن، منصور آباد اور دیگر علاقوں سے مختلف دھڑوں نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ فیصل آباد کے حلقے پی پی 113 سے آزاد امیدوار مزمل سرور ڈوگر کی انتخابی مہم میں تیزی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر بتائیے گا۔ انتخابی مہم میں تیزی آ رہی ہے، اسی حوالے سے پی پی 113 سے آزاد امیدوار مزمل سرور ڈوگر کو مختلف علاقوں سے بڑی کامیابیاں ملی ہیں، اور مختلف دڑوں اور گروپ کی جانب سے مزمل سرور ڈوگر کی انتخابات میں حمایت کا اعلان کیا ہے، جس میں مدینہ ٹاؤن سے زاہد اسلم ماربل اور اسلم ڈوگر کی جانب سے حمایت کا اعلان کیا گیا۔ اسی طرح مدینہ ٹاؤن کا علاقہ وائی بلاک ہے، وہاں پہ یوتھ رہنماؤں شام علی اور مظہر کی جانب سے حمایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ڈوڈی والا میں میاں عمر گروپ کی جانب سے بھی مزمل ڈوگر کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ منصور آباد کے شرکت ہے، انہوں نے بھی اپنے ساتھیوں سمیت آزاد امیدوار مزمل ڈوگر کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور یہ تمام اعلانات کیے گئے ہیں مختلف کارنر میٹنگ میں اور جو جلسوں کی صورت اختیار کر رہی ہیں، اور ان تمام کی جانب سے آباد 2024 میں مزمل سرور ڈوگر کی CP 113 سے حمایت کا اعلانات کیے گئے ہیں۔ جی عمیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد میں چور ڈاکو دندنانے لگے۔ 24 گھنٹوں میں 104 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ اقبال ڈویژن 36 وارداتوں کے ساتھ سر فہرست رہا۔ بات کر لیں گے طیب مقبول سے۔ جی طیب بتائیے گا، پولیس وارداتوں کی روک تھام کے لیے کوئی ٹھوس پالیسی کیوں نہیں اپنا رہی؟ فیصل آباد اور اس کے گرد و نواح میں وارداتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ فیصل آباد کی اقبال اور مدینہ ڈویژن پولیس شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ مجموعی طور پر فیصل آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 104 ڈکیتی رازنی چوری کی وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں، اور اقبال ڈویژن میں حسب سابق سب سے زیادہ 36 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ مدینہ ڈویژن 29 وارداتوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا، جبکہ جڑاوالا ڈویژن میں 17، لائل پور ڈویژن میں 14 اور صدر ڈویژن میں 8 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ اگر ان وارداتوں کا سرکل کی سطح پر جائزہ لیا جائے تو اقبال ڈویژن کے سرکل صدر میں سب سے زیادہ 22 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مدینہ ڈویژن کے سرکل نشات آباد میں
दूसरे नंबर पर 16 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। जड़ावाला सर्कल में तीसरे नंबर पर 10 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। मजमूई तौर पर फैसलाबाद में राहज़नी की 42 वारदातें 24 घंटों के दौरान हुई, जिनमें शहरियों से नकदी, मोबाइल फोन, जेवरात और कीमती सामान छीन लिया गया। इसी तरह 19 मोटरसाइकिल भी 24 घंटों में चोरी हुए, जबकि नकब जनी की 25 वारदातों के दौरान शहरियों की प्रॉपर्टीज के ताले तोड़कर चोर कीमती सामान चुराकर फरार हुए। इन 104 तमाम वारदातों के मुतासिरीन की जानब से रेस्क्यू 15 पर कॉल भी की गई। पुलिस मौका पर भी पहुंची, रवायती नाकाबंदियां भी की गई, मगर इसके बावजूद पुलिस किसी तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की ग्रीन बेल्ट को वागुजार कराने की PHA की कोशिशें रायगा जाने लगी। एक माह कबल माफिया से वागुजार ग्रीन बेल्ट पर दोबारा कब्जा कर लिया गया। क्या माजरा है, जानेंगे वकास अहमद बेग से। जी वकास। आज बिल्कुल फैसलाबाद में कब्जा माफिया से जान नहीं छुड़ाई जा सकी। एक माह कबल PHA हुक्काम की जानिब से शहर की तमाम शाहराहों पर बने गैर कानूनी ग्रीन बेल्ट्स पर बनी हुई तजावजात जो हैं उनको हटाया गया था, ऑपरेशन किया गया था और ऑपरेशन के नतीजे में लाखों रुपए भी खर्च किए गए थे कि तमाम तर रोड और ख़ास तौर पे ग्रीन बेल्ट को वागुजार करवा के दोबारा से शजरकारी वहाँ पर की गई थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि एक माह भी नहीं गुजरा और हिलाल रोड की अगर बात कर ली जाए, FDA रोड की बात कर ली जाए, तो तमाम तर ग्रीन बेल्ट्स पर दोबारा से कब्जा जो है वो हो चुका है। इस हवाले से खास तौर पे अगर बात की जाए तो नर्सरियों के बाहर बने हुए ग्रीन बेल्ट पर पुख्ता रास्ते जो हैं उन्हें ख़त्म किया गया था हैवी मशीनरी की मदद से और वहाँ पर शजरकारी और ग्रीनरी का अहतमाम किया गया था। अब एक बार दोबारा से FDA रोड और इसके साथ साथ जो है बागे जिनार रोड पर दोनों एतराफ अगर बात कर ली जाए तो ग्रीन बेल्ट पर नर्सरी मालकान की जानिब से दोबारा से टफ टाइल जो है वो लगा दी गई है और तमाम तर ग्रीन एरिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने के करीब है। इस हवाले से अगर खास तौर पर बात कर ली जाए FDA रोड की तो मुख्तलिफ नर्सरी मालकान ने 70 फीट से जायद टॉप टाइल जो है वो लगा ली है, जबकि PHA की जानिब से एक माह कबल किया गया ऑपरेशन जो है वो एक बार फिर मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ नाकाम हुआ है बल्कि इस नाकामी के बाद तमाम तर नर्सरी मालकान की जानिब से ग्रीन एरिया को ख़त्म करते हुए दोबारा से टॉप टाइल जो है वो कर ली गई है। इस तमाम मामले पर PHA हुकाम जो है वो भी खामोश दिखाई देते हैं। कमिश्नर फैसलाबाद की हिदायत पर तमाम ग्रीन एरिया को जो है अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चिलियोट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तोड़जोड़ का सिलसिला तेज कर दिया। NH94 और PP 95 में सैयद इनायत अली शाह और कलीम अली अमीर को मुख्तलिफ बरादरियों की हिमायत मिल गई। बात करेंगे इसी हवाले से बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, चिन्योट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी हमायत का सिलसिला जो है वो जारी है। अंदरून शहर में आज एक बहुत बड़ा जो है वो इकट्ठ हुआ है मोहल्ला मस्कीनपुरा और मोहल्ला आली ईदगाह में, यहाँ पर मुख्तलिफ बरादियों के जो सैकड़ों अफराद थे उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों सैयद इनायत अली शाह, सैयद कलीम अली अमीर की हमायत का ऐलान कर दिया है। इसी तरह यहाँ पर जरगर फैमिली, खोखर फैमिली, लखेतर, मैंगल, पटोना, बलोच, माछी और बसीर बरादरी ने NH94 के जो उम्मीदवार हैं सैयद इनायत अली शाह और PP 95 के जो उम्मीदवार हैं सैयद कलीम अली अमीर उनकी हमायत का ऐलान कर दिया। इस मौका पर सदर अली रज़ा ज़ैदी, सैयद अकीर अब्बास शाह, चौधरी कासिम सद्दू, शहजादा हारून बुखारी, सेक्रेटरी साफा बाजार थे, शेर अली जरगर, मलक हामिद अली, सैयद जहीर अब्बास और दीगर जो है इस मौका पर मौजूद थे। मुख्तलिफ राज्यों की जानिब से हमायत करने पर सैयद इनायत अली शाह और जो दोनों उम्मीदवार थे कलीम अली अमीर उनकी जानिब से शुरका का शुक्रिया अदा किया गया है और बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा खजाना पंजाब ने फैसलाबाद डिवीजन में शोबा सेहत की तरक्याती स्कीमों के लिए करोड़ों रुपए के फंड जारी कर दिए। बात करेंगे इमरान असलम से। जी इमरान। फैसलाबाद डिवीजन में THQ और DHQ के तमीराती कामों के लिए फंड जारी कर दिए गए हैं। क्वार्टर फरवरी तक के तमाम DHQ और THQ के लिए फंड जारी किए गए हैं। फैसलाबाद नुसरत फतेह अली हॉस्पिटल और इसी तरह गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल समनाबाद के लिए 1 करोड़ 73 लाख से ज्यादा के फंड जारी किए गए हैं। बात करें THQ जगजुमरा, THQ जनवाला, THQ समुंदरी और THQ जो तांदलेवाला के लिए फंड जारी कर दिए गए हैं। फैसलाबाद में जिला में DHQ टोबा के लिए जो 1 करोड़ से ज्यादा के फंड जारी किए गए हैं। इसी तरह जो है वो DHQ जंग के लिए 11 करोड़ से ज्यादा के फंड जारी कर दिए गए हैं और THQ समुंदरी के लिए 3 करोड़ और THQ चकजुमरा के लिए 1 करोड़ 19 लाख से ज्यादा के फंड जारी किए गए हैं। इसी तरह THQ गोजरा के लिए 4 करोड़ 37 लाख, THQ कमालिया के लिए 1 करोड़ 27 लाख के फंड जारी किए गए हैं और इसी तरह THQ तांदलेवाला के लिए 2 करोड़, THQ चकजुमरा के लिए 1 करोड़ 19 लाख के फंड जारी किए गए हैं और THQ शोरकोट जंग के लिए 2 करोड़, THQ 18 के लिए 1 करोड़ 35 लाख के फंड जारी किए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब की जानब से तमाम बहुत शुक्रिया आपका।
फैसल आबाद में जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस का बड़ा केस सामने आ गया। चनाब बोर्ड नामी कंपनी ने 22 करोड़ रुपए की जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस जारी की, रिफंड्स एडजस्टमेंट हासिल की। टैक्स फ्रॉड में 4 दीगर कंपनियां भी मुलव्वस निकली। FBI ने तहकीकात में टैक्स फ्रॉड पकड़ लिया। चनाब बोर्ड की सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी गई। बात करेंगे इसी हवाले से उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद में गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री के कारोबार की आड़ में टैक्स फ्रॉड का बड़ा केस सामने आया है। इस हवाले से फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर में रजिस्टर्ड चनाब बोर्ड नामी कंपनी जिसकी जानिब से गत्ता बनाने के लिए इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन 1996 में हासिल की गई और फिर बाद 2024 में ये मामला सामने आया है कि मुतल्लिका कंपनी की जानिब से गुज़श्ता महीनों के दौरान जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस जारी की गई हैं। इस कंपनी की जानिब से मजमूई तौर पर 220 मिलियन रुपए की जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस जारी की गई और इसमें 4 दीगर कंपनियां जो थी वो इस टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस थी और फिर इनकी जानिब से टैक्स एडजस्टमेंट हासिल करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया करोड़ों रुपए। ताहम FBI हुक्काम की जानिब से जब इस मामले की तहकीकात की गई तो तहकीकात में ये टैक्स फ्रॉड जो है वो पकड़ा गया है। कमिश्नर FBI की जानिब से इस केस में फर्दर तहकीकात की गई और चोरी साबित होने पर चनाब बोर्ड नामी कंपनी की जो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन है वो मुअत्तल कर दी गई है। FBI हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से मुतल्लिका कंपनी को मुतादिद नोटिस जारी किए गए कि वो बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बिजली के बिल अदा न करने वालों के खिलाफ घेरा तंग, डेट डिफॉल्टर्स बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। फेस्को ने नादरा को रिकॉर्ड फराहम कर दिया। मजमूई 1,23,18,000 की रिकवरी की गई। बात करेंगे अवैस अली से। जी अवैस, बताइए। जी बिल्कुल, फेस्को की जानिब से डेट डिफाल्टर्स के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया है और फेस्को के वो सार्फिन जिनकी जानिब से अरसा दराज से बिजली के बिल जमा नहीं करवाए गए उनका डाटा जो है वो नादरा दफातर को जो है वो फराहम कर दिया गया है ताकि उन सार्फिन को बैरून मुल्क सफ़र से जो है वो रोका जा सके। और उसके साथ साथ फेस्को की जानिब से डेट और रनिंग डिफाल्टर से जो है वो रिकवरियाँ भी की जा रही हैं। इसी वाले से जो डेट डिफाल्टर हैं उनसे 52 लाख रुपए से जो जायद की रिकवरियां हैं वो फेस्को की जानिब से कर ली गई हैं और रनिंग डिफाल्टर से 26 लाख रुपए से जायद की रिकवरियां कर ली गई हैं। फेस्को काम का यही कहना है कि वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर डिफाल्टर्स के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो जारी है। ना सिर्फ रनिंग डिफाल्टर्स बल्कि डेट डिफाल्टर से भी रिकवरियां की जा रही हैं और इसके साथ साथ जो डिफाल्टर्स हैं उनके ना सिर्फ जो कारोबारी प्रीमिसेस हैं उनके कनेक्शन मुनक़ता किए जा रहे हैं बल्कि रहाइश गाहों के कनेक्शन भी जो है वो मुनक़ता किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो रनिंग और डेट डिफाल्टर्स हैं उनके दीगर कनेक्शंस लगाने से भी तमाम तरह ऑपरेशन स्टाफ को जो है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, वज़ीर आला मोहसिन नकवी की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के 8वें इजलास की सदारत। जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मेयार मद्देनजर रखते हुए प्रोजेक्ट्स जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। फैसलाबाद के लाल अस्पताल की अपग्रेडेशन का जायजा लिया। अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर की तकमील के लिए जरूरी इकदाम की हिदायत जारी की। फैसलाबाद समेत 3 बड़े शहरों में सेफ सिटी अथॉरिटी के कयाम पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया। 3 शहरों में 775 सर्वेलेंस साइट्स पर 5076 कैमरे नस्ब होंगे। हर डिवीजन में मॉडल ई रजिस्ट्रेशन ऑफिस के कयाम के बारे में रिपोर्ट भी पेश की गई। फैसलाबाद में अब्दुल्लापुर फ्लाई ओवर एग्जिट रैंप का तामीराती काम जारी। 1 माह कबल तैयार करदा गार्डर की लॉन्चिंग के लिए नेस्पाक की टीम गार्डर्स सैंपल हासिल करेगी। मजीद बात करेंगे वकास जमील से। जी वकास बेग, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में FDA की जानिब से बनने वाले अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर एग्जिट रैंप पर तामीराती काम जो है वो तेजी से जारी है। इस हवाले से अगर आज की बात की जाए तो तमाम तरह गाइडर्स जो 28 रोज पहले बनाए गए थे, आज नेस्पा की टीम जो है उन तमाम गाइडर के लेबॉरेटरी टेस्ट के लिए सैंपल हासिल करेगी और उसके बाद जो है लॉन्चिंग टाइम जो है वो बताया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ FDA हुकाम की जानिब से रेलवे क्रॉसिंग पर लॉन्च किए जाने वाले गाइडर जो हैं उनके लिए रेलवे हुकाम को मरासला लिख दिया गया है कि रेलवे हुकाम जो है वो जो है कोई ऐसा शेड्यूल टाइम बताएं जिसमें रेलवे लाइन जो है उस पर ट्रेनों की आमदो रफ्त को जो है वो 4 से 5 घंटे के लिए रोका जा सके और उसके साथ ही
मेन गर्डर जो हैं उनको लॉन्च किया जाएगा। इस हवाले से रेलवे हुकाम को लेटर जो है वो लिखा गया है एफडीए की जानिब से कि सूटेबल टाइम जो है वो गर्डर्स की लॉन्चिंग के लिए बताया जाए, जबकि दूसरी जानिब तमाम तर जो रिटेनिंग वाल है उसकी कंप्लीटेशन मुकम्मल हो चुकी है। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए तमाम पाइल्स की तो वो मुकम्मल हो चुके हैं। बॉक्स गार्डर जो हैं उनकी तामीर का सिलसिला जो है वो आखिरी मरहले में जारी है। अब बनाए गए तमाम गर्डर जो हैं उनको इंस्टॉल किया जाना है, बुलंदी पर उठाया जाना है, जिसके लिए ना सिर्फ नेस्पा की टीम तमाम तर गर्डर्स के लेबॉर्ट्री टेस्ट जो है वो उनके उठाए जाने से पहले मुकम्मल करेगी, बल्कि साथ ही साथ रेलवे हुकाम से एफडीए की जानिब से टाइम भी मांगा गया है कि कोई टाइम फ्रेम जिसमें रेलवे लाइन खास तौर पर चूंकि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन जो है वो बिल्कुल कुछ ही करीब है इस फ्लाईओवर के। बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े आपको बताएं, फैसलाबाद डिवीजन में स्कूल एजुकेशन की तरक्यात स्कीमों के लिए फंड जारी, हर जिला के हिस्से में कितने फंड आए जानेंगे इमरान असलम से। जी इमरान। फैसलाबाद में स्कूल एजुकेशन की तरक्याती स्कीमों के लिए फंड जारी कर दिए गए हैं। फैसलाबाद, जंग, टोबर, चनियोट में तरक्याती स्कीमों के लिए फंड जारी किए गए हैं। फैसलाबाद की 2 स्कूल्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 60 लाख के फंड जारी किए गए हैं। इसी तरह टोबर टैक्सी की 14 तरक्याती स्कीमों के लिए 3 करोड़ 60 लाख और इसी तरह जंग की एक स्कीम के लिए भी 60 लाख और इसी तरह चनियोट की जो है वो 4 तरक्की स्कीमों के लिए 1 करोड़ और 30 लाख से ज़्यादा के फंड जारी किए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब की जानब से फरवरी तक के तमाम फंड जारी कर दिए गए हैं और ये तमाम तर फंड से स्कूल्स में जो तरक्याती काम हैं वो सर अंजाम दिए जाएंगे। 4 दीवारी, इसी तरह दीगर जो मिसिंग फैसिलिटी मनसूबा के तहत फंड जारी जो है वो लगाए जाएंगे और स्कूलों में तमाम तर जो साइंस और कंप्यूटर्स की जो लैब के आलात की खरीदारी है इन तमाम फंड से खरीदी जाएगी और फंड्स डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए गए हैं और फंड्स के इजरा के हवाले से महकमा खजाना पंजाब की जानब से डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर को हदायत जारी कर दी गई हैं कि फैसलाबाद, जंग, टोबर, चनियोट में। शुक्रिया अपडेट करने के लिए इमरान।